Good morning, Saurabh. Good morning, Mr. Hartigan, and good morning, others. Actually, the purpose to do this session is digital revolution. We just wanted to spread the word to all the SGT University students, faculty, and the people who all are on LinkedIn, social media, Twitter, like Twitter, Facebook, Insta, that because we all are facing challenges while using the technology. Uh, Before I start the conversation, I just want to say a few words that a pandemic like COVID 19 shakes the entire economy of any country, right from general businesses, stock markets, tourists, and related industries, and betters the day-to-day life of civilians. So most cities are in state of lockdown, forcing people inside their homes and converting buzzing cities into ghost towns basically. So, but an important uh, and when this happens with the mass hysteria, we have a situation where everyone fears the worst, stockpiling essentials, groceries, and yes, running out of cash. But an important question is, because Saurabh is with us today, do we really need cash? So, during the lockdown, digital technologies along with digital platforms have covered almost every aspect of information dissemination, including the treatment protocols of collaborations. So, 42% Indians say they have increased use of digital payments during lockdown, and from 42, 33% are using Paytm and 14% using Google Pay, and rest 33% other apps, and 4% Phone Pay, and 10% Amazon Pay. So the lockdown has also what made first-time users who were not very techno-savvy closer to the digital payments ecosystem. So that's all I want to say. I will not take much time. Now I would like to request Mr. Harbhajan Singh, Chairman Ease of Doing Business CII Haryana, and Chief Strategy and People Care SGT University Gurgaon. Sir, please continue the conversation with Saurabh Jain, VP, Vice President Paytm, and share your views on today's topic, digital revolution. All yours, sir. Hi, thank you, Rima. Welcome, Saurabh. So I was saying that the ecosystem that we see today, Paytm has a great contribution in bringing it to this level. So at the outset, I would first like to understand that in this scenario of crisis, how is the digital system going to reach the lowermost strata of society? I mean, the rural folks and the people who are, sort of senior citizens who may not be digitally literate. How do you foresee the reach going to them in the days to come? So actually, I feel that right now everybody is becoming digital savvy. So earlier, people started using mobile payment apps after demonetization, and in fact, I would say that yesterday only my wife was saying that demonetization was good because had demonetization not happened during this time in Corona, it would have been very difficult to use cash because cash obviously first you have to go to bank where there are people standing in the queue, and then obviously you have to give physical cash, take change back. So cash is very difficult at this time. Also, right now many of the online services are not accepting cash. So digital payment is very convenient, as well as it is very convenient for even staff members. For example, I have paid my driver and maid etc. Through Paytm only, or through Paytm app. I have done IMPS to them. So had the demonetization not happened, I think that usage would not have been there. So that is helping people. The other thing is that right now most people, even at the bottom of the pyramid, as well as senior citizens, are getting tech savvy. For example, my mother asked me 1 month ago what is Zoom, and now most of her friends are talking on Zoom. My son joined a birthday party of his
friend on Zoom, and my the guard he talks every day to his family in Bihar on WhatsApp. I don't know whether he does video call or not, but he talks on WhatsApp call every day to his family. So things are changing. I think everybody is now using mobile apps to certain extent. So Zoom and WhatsApp and all these apps are being used by everyone. So I think digital payments also, because Paytm has a very big subscriber base. We have like our subscriber base is even bigger than the population of United States. So we have crores of subscribers, and people were using Paytm, but now obviously because they are getting more digital savvy. Because one example I can give, a concrete example, is that my wife had a Paytm account, but she was always using debit cards. And yesterday she said, "I want to become a now a daily user of Paytm," because what is happening is that her friends are playing Tambola online, and they want actually they are playing online games also, and they want normally in Tambola you give 20 rupees ticket or 50 rupees ticket. They want to give that on Paytm. So many people are now using all these digital payment mediums, which earlier people were not using due to the different scenario here. In fact, right now getting close to people, physical proximity is becoming an issue because everybody is afraid of corona. And there I have seen that even like a month ago when I last renewed my car, I paid only through Paytm because like the reason was that all the other mediums you have to touch uh, the collector. You have to give the credit card, or you have to get debit card, or you have to give cash, and you touch the person who is accepting it. But here you don't have to touch anybody. So Paytm, I think, is being used a lot these days. And because people are getting digital savvy, I don't think like technology is an issue. The other thing, which the last thing which I would like to tell is that our founder Vijay Shekhar Sharma is comes from Aligarh, a small town in UP, and he has lived in the Hindi heartland, and he knows that what are the problems with people from small towns and people in villages, and he is very sensitive to that. So due to lack of time, I would not be sharing some stories, but I know some instances where he asked the रिक्शा वाला और ही आज दी ढाबा वाला कि भैया पेटीएम यूज करते हो या नहीं, एंड उनकी जो फीडबैक ली उन्होंने वो पेटीएम में इंकॉर्पोरेट करी. सो वी आर वेरी ओपन टू गेटिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल, एंड वी डोंट फील कि मतलब एक जनरल एजुकेटेड क्लास में होता है कि मतलब मैं रिक्शा वाला या ढाबा वाला ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हम इनसे क्यों इनपुट लें. हमारे यहाँ वो बिल्कुल नहीं है. डिज़ाइन टीम इज़ वेरी डिज़ाइन सेवी, एंड व्हाट दे डू इज़ दैट जो हमारे ऑफिस के आसपास जितने भी ठेले वाले होते हैं उनके पास जा जाके वो इंटरव्यू करते हैं. विजय जैसे मैंने बताया कि रिक्शा वाला ठेले वाले से खुद पूछते हैं कई बार, जब कहीं भी उनको अगर जैसे, एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह कई बार लेते हैं तो ही आस्क पीपल कि भैया आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो या नहीं, क्या फीचर्स चाहिए क्या नहीं चाहिए. एंड ही ऑलवेज टेल्स हिज टीम इंक्लूडिंग मी कि आप जाके पूछो लोगों से, आम आदमी से, कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है. एंड दैट्स द रीज़न आज आम आदमी यूज़ कर पा रहा है पेटीएम. आप देखिए क्रेडिट कार्ड 30 साल से इंडिया में है, बट कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, रिक्शा वाला ठेले वाला आम आदमी गाँव वाला. बट आप ये देखिए पेटीएम आज गांव गांव में है. एंड इवन मेरा कारपेंटर, अभी पीछे उसका फ़ोन आया कि सर मुझे एडवांस दे दो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने कहा सर पेटीएम कर दो मेरे को. तो आज आप देखिए आम आदमी बिल्कुल पेटीएम यूज़ करने लग गया है. वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ आम आदमी को हम सोचते थे वो टैक्स सेवी नहीं है. दूसरा आई वुड से कि टेक जायंट्स भी जो हैं पेटीएम जैसे, वो आम आदमी के प्रति ज़्यादा फ्रेंडलियर हैं. आप देखिए आज से 20 साल पहले एनआईटी कोर्स करता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करने का. आज आपको आप पेटीएम यूज़ करने का या व्हाट्सएप यूज़ करने का कोई कोर्स नहीं आता है. तो उसका रीज़न ये है कि कंपनीज आर मोर यूएक्स फ्रेंडली, यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड दैट्स द रीज़न आम आदमी इसको यूज़ कर पाता है. I was thinking that who have to drive the digital ecosystem of the future? What three main changes and what three main supports to expect from the government? देखिए 3 चेंजेस जो विच आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से ऑलवेज थोड़ा, करंट गवर्नमेंट इज वेरी टेक्स सेवी, एंड आप जैम ट्रिनिटी देखिए, जनधन, आधार एंड मोबाइल,
का फोकस रहा ही है, तो आई वुड से दे आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फिनटेक। स्पेशली आप यूपीआई देखिए, करंट गवर्नमेंट ने यूपीआई को बड़ा प्रमोट किया है। तो आई वुड से कि एक तो वो एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं वो करते रहें। दूसरा आई वुड से कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट, अगर मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ये मेरी कंपनी की तरफ से नहीं मैं कह रहा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा गवर्नमेंट अगर कर सके तो थोड़ा सा जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली अगर इफ दे आर मतलब ऑल्दो गवर्नमेंट डज लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव पर्सनली सीन फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं, तो थोड़ा सा बनियान दिख रहे हो डिफिकल्ट टू स्टॉप। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो फिशिंग वाले अटैक ज़्यादा होते हैं जिसमें एंड यूजर पासवर्ड खुद ही शेयर करता है, तभी होता है। मतलब एप्स आर ऑलवेज सिक्योर, वहां टूल्स पे आर दिख रहा सिक्योर, है। बट अब आप ऑब्वियसली पासवर्ड खुद ही दे दो, तो जैसे आप अपने घर में अगर खुद ही ताला खोल के किसी को घुसा दोगे तो ऑब्वियसली कुछ भी पुलिस कर नहीं सकती। बट आई वुड से अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करे, और थोड़ा सा मतलब अगर हम पब्लिक कैंपेन चलाएं लोगों को थोड़ा एजुकेट करने के लिए, जो कि कंपनीज तो करती हैं बट गवर्नमेंट के एंगल से इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे हमने कोरोना में देखा, गवर्नमेंट ने पब्लिकली एजुकेट किया तो लोगों को समझ आ रहा है, लोग मास्क पहन रहे हैं। तो वही आई वुड से कि थोड़ा सा अगर वो हो सके बेटर है। तीसरा आई वुड से कि थोड़ा सा अभी मतलब एज ऑफ नाउ आई वुड से कि टेक्निकली थिंग्स कैन इम्प्रूव एंड यूजर एक्सपीरियंस पहले से इम्प्रूव हुआ है गवर्नमेंट का। बट आई वुड से कि अगर गवर्नमेंट की जो अपनी एप्स है ना, वो थोड़ी सी बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाउस टैक्स पे करना हो तो मैं हाउस टैक्स की ऐप पे जाता हूँ या और किसी की ऐप पे जाता हूँ, वेबसाइट पे ना, वो बहुत मतलब यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। मतलब दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि जितने भी गवर्नमेंट की हाउस टैक्स की या इनकम टैक्स की भी मैं वेबसाइट बनाऊँ तो थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटर होती हैं, बट जनरली ये लोकल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की बड़ी अजीब सी यूजर इंटरफेस होता है। मैं एक एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। अभी मेरा जो गार्ड है वो आया मेरे पास कि सर 1000 रुपये, जो भी बिहारी लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, हमें 1000 रुपये मिल जाएंगे, आप मेरे लिए ये डिटेल भर दो अपने फ़ोन पे, क्योंकि मुझे भरनी नहीं आती। मैंने उसकी डिटेल कम से कम 4 बार भरी, वो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट ही चल के नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो 1000 रुपये उसको समझ लीजिए मिलने हैं, अगर वो वेबसाइट हो और वो वेबसाइट फिनटेक ऐप से इंटीग्रेटेड हो, तो जैसे समझ लीजिए उसने भरा और अगले दिन सुबह उसके पेटीएम अकाउंट में या उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएं, तो आई वुड से वो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगी। बिकॉज आज गवर्नमेंट बहुत सारी पेमेंट्स तो कर रही है आम आदमी को, गरीब आदमी को। आप देखिए बिहार गवर्नमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कल हमने सुना है काफ़ी चीज़ कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रिक्शंस इन बिटवीन। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करी, उसमें अपना अकाउंट बनाया और उसमें गवर्नमेंट पैसे दे देगी और आप इमीडिएटली उससे पे कर पा रहे हो। इट इज़ अ रिलेटिवली अभी कम्बरसम प्रोसेस। वो थोड़ा सा मतलब एग्जीक्यूशनल जो इश्यूज हैं, अगर वो थोड़े से बेटर हो जाएं, विच आई फील हो भी रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, और थोड़ा सा पर बट ये है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की जो अपनी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऐप्स है ना, वो इम्प्रूव हो जाए, उनमें डिजिटल पेमेंट्स थोड़ी सी इंटीग्रेटेड बेटर वे में हो जाए, तो वो बेटर होगा। एंड ऑब्वियसली अगर इफ दे आर मोर प्रोएक्टिव एंड वो हमारे जैसी कंपनीज को रीच आउट करें इंटीग्रेट करने के लिए पेमेंट्स, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो आई वुड से कि यही मेजर इश्यूज हैं। बाकी ब्रॉडली आई वुड से कि गवर्नमेंट इन द करंट टाइम आर रिलेटिवली टेक सेवी एंड उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट का हमेशा रहता ही है फोकस। थोड़ा सा जनरली जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की जो ऐप्स है ना, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस के एंगल से उतनी अच्छी नहीं होती हैं। टेक्निकली कई बार ठीक भी होती हैं, बट वो लास्ट डे रश पे भी बैठ जाती हैं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी उतनी यूज़ नहीं करती मेरे हिसाब से। तो वो इंटरनल एग्जीक्यूशनल इश्यूज हैं। आई वुड से लीडरशिप के लेवल पे तो ठीक है चीज़ें इस समय, बट एग्जीक्यूशनल इश्यूज जो हैं वो थोड़ा सॉल्व करें तो बेटर है। थैंक यू सौरभ जी। आई वॉज एक्चुअली हिंटिंग टूवर्ड्स दिस ओनली। जब मैंने अपना पहला प्रश्न आपको किया था कि जो हमारे भारतवर्ष में ऐसी जनसंख्या बहुत बड़ी है जिसकी डिजिटल लिटरेसी का लेवल बहुत लो है, और मैं अगर उसमें आपने जैसे ये ऐड किया कि फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए पहल होनी चाहिए और क्या कह रहे हैं? डिजिटल एजुकेशन को एक बड़े स्तर पर पुश मिलनी चाहिए।
देखिए, हमारे ज़माने में, हमारी जनरेशन में गाँव में अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला आदमी होता था, तो हम उसको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे और सोचते थे ये बहुत पढ़ा लिखा है। पर आज हर घर के बच्चे जो है वो अंग्रेजी बोलने में ही महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन ये नए युग की जो नई भाषा है, वो डिजिटलाइज़ेशन है। और कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे जनरेशन के लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी वो कम्फ़र्ट आने में काफ़ी समय लगा। एंड generate that trust. We have the security of the money which we are transacting through these apps. तो हमें काफी लगा, अब तो काफी acceptability बढ़ गई है. But despite that, I would like to understand from your perspective that how can we strengthen and make the security more more stringent and can create more trust so that the cyber transactions can happen more and more, and the paper money, which in a large extent is now moving out of circulation because of the plastic money which has moved in, and digital transactions. But still I find that there is a very large chunk of population which still believes in dealing through paper money. So एनी मीन्स आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि एजुकेशन एंड मोर प्रोपोगेंडा ऑन दीज थिंग्स विल इनेबल द पॉपुलेशन टू कम अप ऑन दिस. मैं आपसे एक अगर और चीज जानना चाहूँ तो कोविड-19 ने डिजिटल लैंडस्केप को पुनः रीशेप कर दिया है. बहुत सारे लोग जो डिजिटली बहुत सेवी नहीं थे, वो भी अब की निर्भरता जो है वो काफी बढ़ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे. और हम लोग यदा-कदा सुनते रहते हैं कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है. इस बारे में आप क्या दृष्टिकोण प्रकट करना चाहेंगे या क्या देखिए, विचार है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको ब्रॉडली बताऊं, सेफ्टी ना 2-3 तरीके की होती है. एक जी. तो सेफ्टी वो होती है कि आपकी ऐप इनसिक्योर है. एक सेफ्टी होती है कि ऐप सिक्योर है पर वो जान से फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ. जैसे मतलब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर हमारी एक पड़ोस की कंट्री है जिसके ऊपर हमें जनरली मतलब लोगों को एक एप्रीहेंशन रहता है कि अगर उसकी ऐप है तो वो एस्पिनाज कर रहे हैं. अब वो एक अलग इशू है. एक है कि ऐप की कंपनी ने ही जो ऐप बनाई है वो सेफ नहीं बनाई है. एक तीसरी इशू है कि आपने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया किसी को, और ऐप सेफ है, सिस्टम सेफ है, पर आप ही पासवर्ड दे देंगे तो ऑब्वियसली फिर तो हैक हो ही जाएगा. तो ये 3 तरीके की सिक्योरिटी है. देखिए, उसमें पड़ोसी देश वाले के केस में मैं तो यही कहूंगा कि उस केस में सरकार को वो डिसीजन लेने हैं. मेरा उसमें कोई कमेंट करने का एम नहीं है. दूसरा, और ऑब्वियसली मैं कमेंट इसलिए भी नहीं कर सकता, मुझे टेक्निकली पता भी नहीं हो भी रहा है, एस्पिनाज नहीं हो रहा है, वो लोगों का वहम भी हो सकता है. दूसरा, जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि सिस्टम ही सेफ नहीं है. फॉर एग्जांपल, अभी हमने जूम के केस में देखा कि जूम में जो सिस्टम था, देखिए वो सिस्टम मैंने थोड़ा स्टडी किया, वो सिस्टम इतना अनसेफ नहीं था. वो हुआ क्या कि हर आदमी यूज करने लग गया. तो वो वैसा है जैसे विंडोज में पहले वायरस ज्यादा बनते थे और मैक में कम बनते थे, क्योंकि मैक के 6% मार्केट शेयर था, विंडोज का 94% मार्केट शेयर था. तो आई वुड से कि वो जूम में क्या हुआ कि आप मीटिंग आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालने लग गए, फिर कोई भी आदमी ज्वाइन करके, वो मीटिंग हैक नहीं होती, वो बेसिकली मीटिंग में आपका माइक्रोफोन ऑन करके आवाज करना शुरू कर देता था. या समझ लीजिए, वो एक दिन मेरे केस में भी हुआ था कि वो उन्होंने उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिया मार्कर उठा के. तो वो आई वुड से होस्ट की भी गलती है उसमें. कुछ जूम ने वो भी चेंज करे, अपने डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करे कि आप बाय डिफॉल्ट कोई भी आदमी आके कुछ नहीं कर सकता. तो मेरा यह मानना है कि जो ये कंपनी वाले इशूज हैं, देखिए कंपनीज प्रोएक्टिवली कर रही हैं इस समय. जूम सुधार कर दिया है. पेटीएम के केस में तो हमने एआई और बहुत सारे फ्रॉड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लगा रखी है. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. हमने अभी ना अपनी फ्रॉड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी याहू जापान के साथ टाई अप करी है. तो जनरली क्या होता है कि होंडा वगैरह को आप देखते हो, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में देते हैं और इंडियन कंपनी मार्केटिंग पार्टनर होती है. हमारे केस में उल्टा है कि हम याहू जापान को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं एंटी फ्रॉड एआई वगैरह की, और वो हमारे मार्केटिंग पार्टनर है. मतलब जो हमारा जॉइंट वेंचर है, पेटीएम जापान में भी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पीछे यूज किया था वो पेपे नाम से. तो पेपे के अंदर टेक्निकल पार्टनर हमें और मार्केटिंग पार्टनर याहू जापान. तो आप ये देखिए कि हम फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं,
तो सिस्टम सिक्योर है। अब सिस्टम का ऑडिट भी होता है, आरबीआई भी आके ऑडिट करता है, तो सिस्टम सिक्योर है। अब पेटीएम में तो मैंने खासकर मतलब जो मेरे पास देखे, कभी कभार लोग आते रहते हैं जानने वाले, तो मैंने देखा है वो होता क्या है कि वो ना गलती से पासवर्ड दे देते हैं या कई बार इंटेंशनली पासवर्ड देते हैं। अब दोनों रीजन है। देखिए, गलती से पासवर्ड देने में क्या होता है कि आपको किसी ने कहा कि सर आप मुझे शेयर कर दो, आपने कर दिया। अब वो आप इतने टेक्स हैवी नहीं थे, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट अगर एजुकेशन कैंपेन चलाए। हम तो लिखते ही हैं कि आप अपना पासवर्ड शेयर मत करिए, हर एक जगह लिखते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने और देखी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ मेरे को अभी किसी ने मतलब ईमेल भेजी कि सर ये हो गया है मेरे साथ, प्लीज हेल्प करो। तो वो हुआ क्या कि किसी ने अभी पीछे जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, तो उस समय आर्मी का बहुत लोगों के बीच में मान बढ़ गया था। मतलब आर्मी का मान हमेशा रहता है, बट उस समय थोड़ा हमारे जैसे आजकल डॉक्टर्स के प्रति हम बहुत ज्यादा वो है, हम एक सैल्यूट करते हैं डॉक्टर को। उस समय हमारे आर्मी के ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा था कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हुआ क्या कि वो आर्मी के नाम से किसी ने फोन किया कि सर मैं आर्मी का एक कर्नल बोल रहा हूँ, आप मेरे को प्लीज प्रॉब्लम आ गई है, मेरे को 17,000 रुपए चाहिए, आप मेरे को अपना पासवर्ड दे दो। और उस लेडी ने पेटीएम का पासवर्ड अपना उसको शेयर कर दिया, ये सोच के कि ये तो आर्मी का कर्नल है, ये अच्छा आदमी है, इसको शेयर कर दिया। अब वो लेडी ने मेरे को जब कनेक्ट किया, तो मैंने भी उनको यही कहा, मैंने कहा आपने तो पासवर्ड खुद ही शेयर किया है, उसमें फ्रॉड क्या है? वो तो आपने खुद ही शेयर किया है। तो बोली वो फ्रॉड ये है कि वो आदमी बोला मैं आर्मी का हूँ, कर्नल हूँ, मैं आपको कल वापस कर दूंगा, उसने कल पैसे वापस नहीं करे। तो फिर हमने वो फ्रॉड रुकवा दिया था, हमने इन्वेस्टिगेशन कराई। तो मैंने आगे इसको फॉरवर्ड किया, तो हमारी फ्रॉड मैनेजमेंट टीम ने उसको रोक दिया और वो लेडी को पैसे वापस मिल गए। बट मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो रेयर केस में होता है, वो चांस की बात है, वो लेडी को पैसे वापस मिल गए। क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, अगर एक बार आपसे पासवर्ड ले लेते हैं, फिर देखिए बहुत अनसेफ हो जाता है। बिकॉज वो एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डालते रहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली कंपनी के हाथ में नहीं रहता। कई बार एक और अभी इंटरेस्टिंग फ्रॉड आया मेरे पास। वो बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रॉड ये था कि एक लेडी ने गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा था, उसका गूगल पे से कहीं पे उसने पैसे भेजे। अब वो कह रही है फ्रॉड हुआ, तो मैंने कहा मैं इसमें कैसे हेल्प करूँ, तो गूगल पे से हुआ, आप गूगल पे को रीच आउट करो। अब वो ये कह रही है कि सर उस पूरी लूप में मैंने पता किया है कहीं पे किसी आदमी का क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, सारी चीजों पे अकाउंट बनाए रखते हैं। तो वो बोली कि कई जगह पे अकाउंट उसने बना रखा था सर, मे बी पेटीएम भी हेल्प कर सकती है, आप देख लीजिए। मैंने कहा इतना वेग हेल्प इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज स्पेसिफिकली पेटीएम में हुआ हो तो हम फिर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट अब कहीं भी हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन ट्रेल, ये साइबर सेल पुलिस का काम है। मैं अभी पीछे पुलिस के साइबर सेल में जो कंसल्टेंट है उनसे भी मिला था, और मैं पीछे आईबी में भी काफी सीनियर लोग हैं उनसे भी मिला था। तो मैंने जनरली यही बात करी। तो देखिए प्रॉब्लम मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल वही है कि अगर आप अपने घर में ताला बंद नहीं करेंगे और किसी को भी कहेंगे भैया तू आ जा और रात को ताला खुला हुआ है, तो पासवर्ड शेयर करना इज समथिंग लाइक दैट। और वो मैं आपको बताऊं ऑफलाइन में भी होता था। मेरे को ध्यान है, मैं बचपन की बात है, मेरे फादर के पास एक बार कोई आया, उन्होंने एक तरीके से हिप्नोटाइज किया। 10-20 हजार रुपए उस जमाने में ले गया था, आज से 30 साल पहले। तो वो कैश में भी हो जाता है कि आपकी दुकान में कोई आता है और आपको इस तरीके से भ्रमित कर देता है कि आपसे 20-30 हजार रुपए ले जाता है। ये कैश में भी होता है। तो सेम फ्रॉडस्टर देखिए वो सॉर्ट ऑफ हिप्नोटाइज कर देते हैं फोन करके कि सर आप अपना पासवर्ड शेयर करिए। वो आई वुड से कि वो चीज बहुत मुश्किल है रोकनी, बिकॉज अगर आप खुद ही पासवर्ड शेयर कर दोगे तो देखिए वो बहुत मुश्किल है, उसको कैसे कंपनी एक सॉल्व करे। मैं मतलब उसको साइकोलॉजिकली भी आप मान के चलिए, अगर मैं खुद ही अपना पासवर्ड दे दूंगा तो फिर तो कुछ भी हो ही सकता है। वो तो वैसा है कि आप अपने बैंक अकाउंट के लॉकर की चाबी किसी को भी दे देंगे और कह देंगे साइन करके भैया इसको घुसाओ, तो वो मुश्किल है। आई वुड से वो सबसे मुश्किल है कंपनीज के सिस्टम वाला। फिनटेक तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी और ऑडिट्स वगैरह होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट कई लेवल पे होते हैं। हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, हम एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट कंपनी के सिस्टम्स 100% सिक्योर हैं। अब पॉइंट सिर्फ वही आता है जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा तो वो सिक्योर नहीं है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर आदमी ने पासवर्ड खुद ही अपनी मर्जी से दिया और उसके बाद फिर उसकी बाद में मतलब सामने वाले ने वो चीज़ ऑनर नहीं करी। जो समझ लीजिए मैंने किसी दुकान वाले को पैसे भेजे और दुकान वाले ने वो चीज़ डिलीवर नहीं करी, तो वो आई वुड से वो ऑनलाइन फ्रॉड जरूर कहलाएगा, बट उसमें
डिजिटल पेमेंट मीडियम का नहीं होता, बिकॉज ये भी होते हैं कई बार फ्रॉड की, सर हमने यहाँ पर पैसे भेजे और दुकान वाले ने कहा था ये शिप कर देगा, पैसे मिलते ही वो शिप नहीं कर रहा, तो देखिए वो फिर आई वुड से वो बड़ा अलग टाइप का फ्रॉड हो जाता है। वो कैश की तरह ही हो जाता है, मैंने किसी को कैश दिया है एडवांस और उसने कहा सर मैं 1 हफ्ते में डिलीवर करूंगा और वो नहीं डिलीवर करता, तो वो कंज्यूमर कोर्ट वाला इशू बन जाता है। तो आई वुड से ये फ्रॉड्स कई तरीके के हैं, इसको हमें एक ही उसमें नहीं करना चाहिए कि वो पेमेंट प्लेटफॉर्म अनसिक्योर है। जैसे मैंने आपको जूम का भी बताया, जूम में भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अभी पीछे मैंने भी अपने पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जूम कॉल करी, तो मेरे कजन है वो बड़ा उसको लगा, कह रहे हैं जूम अनसिक्योर है, जूम मत यूज करो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भैया अगर उस एंगल से अनसिक्योर है कि अगर समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज करेंगे तो अनसिक्योर है, बट अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं और भैया आप क्या आजकल घर में कैसे रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कोई कर भी लेगा हैक तो क्या ले जाएगा। तो आप इस एंगल से भी देखिए कि अगर आप इवन डिजिटल अकाउंट्स में मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं कि आप अपने ज़्यादा पैसे जिस अकाउंट में रख रहे हैं उस अकाउंट को आप कम यूज़ करिए और जिस अकाउंट को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें कम पैसे रखिए, आई वुड से, जिसमें आपको फिर थोड़ा डर कम रहेगा। वो भी आई थिंक थोड़ा सेव करने का तरीका है। और आई वुड से बाकी देखिए आजकल ये मजबूरी है, मतलब ये वैसा है कि कार एक्सीडेंट्स होते हैं बट उसके बाद भी हम कार तो यूज़ करते ही हैं, तो वही सेम चीज़ है। या कोरोना है तो अब इस बार तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मास्क पहन के अब हमें इकोनॉमी तो खोलनी ही पड़ेगी। तो आई वुड से ये वैसे ही है कि डिजिटल पेमेंट्स, बट परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे ना तो करोड़ों यूजर में कुछ हजार ही केस आते हैं। आई वुड से परसेंटेज वाइज रिलेटिवली कम है केस, मतलब क्वांटिटी वाइज आपको ज्यादा दिखेंगे हजारों में, बट करोड़ों यूजर हैं उस हिसाब से अगर हजारों केस हैं तो रिलेटिवली परसेंटेज वाइज बहुत कम केस आते हैं। Thank you, Saurabh ji. I am thankful to you for all the information that you have shared. मैं जाते जाते केवल एक चीज की दरखास्त आपसे करना चाहूँगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो न्यू यूजर्स के लिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम डिवाइस करके अपनी साइट्स पे डालें या अपने ऐप का हिस्सा बनाएं न्यू यूजर्स को एजुकेट करने के लिए, तो दैट विल हेल्प द न्यू यूजर्स टू गेट कनेक्टेड। और अगर केवाईसी फिजिकली नहीं करा करके अगर उसकी कोई संभावना हो कि डिजिटली केवाईसी हो सके, तो उससे भी मेरे ख्याल से फ्रॉड्स को रोकने में थोड़ी मदद मिलेगी। एंड आई एम श्योर दैट will look into it. I thank you very much. रखना। I thank Rima, and final words to you, Rima, before we close. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच हरभजन सर, सौरभ। और ये जो सर ने अभी हरभजन सर ने केवाईसी की बात की, तो सौरभ मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने भी पेटीएम यूज बहुत टाइम से नहीं किया है, उसका रीजन केवाईसी अपडेशन ही है, क्योंकि वो हाँ फिजिकली नहीं, वो मैं मेरे आपको को देखिए वो बताना चाहूंगा कि केवाईसी में क्या प्रॉब्लम है कि केवाईसी ना आरबीआई की तरफ से है कि फिजिकल केवाईसी करना जरूरी है। अब वो फिजिकल केवाईसी भी होता डिजिटल मशीन से ही है, उसमें पर आपको ना अपना वो करना पड़ता है, ये जो बेटर है, बट हाल फिलहाल हमारे लिए भी ये सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है कि फिजिकल केवाईसी कराओ तो वो देखिए जहाँ फिजिकल आ जाता है ना वहाँ चीज़ें स्लो हो जाती है, जहाँ जहाँ डिजिटल आ जाता है वो चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट आई वुड से कि नहीं उसका तरीका इसमें हम यही करते हैं कि हम्म, अलग अलग जगह पे हम सेंटर्स बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। इंटरनली काफ़ी बात भी हुई है कि ऐसी जगहों पे भी कर सकते हैं वही केवाईसी। बट आई वुड से कि मुझे लगता है गवर्नमेंट कोरोना के बाद कुछ ना कुछ चेंज करेगी, बिकॉज जनरली क्या होता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ही केवाईसी आप कराते हो, एंड हाल फिलहाल भीड़ का इशू है, तो आई वुड से कुछ प्रोसेस चेंज होगा, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ राइट नाउ बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि अगर गवर्नमेंट में चेंज हुआ है। बट राइट नाउ केवाईसी अभी लास्ट वीक तक तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वही रीजन है कि एक तो ज्यादातर सेंटर ही बंद है अभी लॉकडाउन में, और दूसरा ये है कि अगर कहीं खोलते भी हो आप तो भीड़ से आजकल इशू है, तो वो फिजिकली अगर आप लाइन लगवाते हो या वो बायोमेट्रिक करते हो इट्स अनसेफ। तो राइट नाउ अभी केवाईसी बंद था लास्ट वीक, तो आई वुड से कि आई मेरा होप मेरा गवर्नमेंट कुछ वीडियो या कुछ ले आती है। एक मेरा एक और सुझाव था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 4-5 बैंक अकाउंट, अगर 2 बैंक अकाउंट्स में भी केवाईसी हुआ है, तो व्हाई कांट द सेम केवाईसी बी फॉरवर्डेड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स इन द इकोसिस्टम। इस एक बैंक ने हाँ अगर आई थिंक ये सेम चीज होनी चाहिए, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड के केवाईसी में यूज होता है। अगर आप ये देखिए म्यूचुअल फंड में क्या जी होता है कि अगर आपने एक बार केवाईसी करा दिया ना तो सारे म्यूचुअल फंड एक ही करेक्ट केवाईसी यूज करते रहते हैं।
जी जी। आई वुड से लेकिन ये हर बैंक में आपको अलग अलग आई वुड से केवाईसी कराना गवर्नमेंट पड़ता है, की जिससे तरफ कोई से है। कंफ्यूजन। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा, मतलब वो क्या है कि देर आर मल्टीपल रेगुलेटर्स इवन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस का रेगुलेटर अलग है, आरबीआई अलग है, और सेबी अलग है जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह रेगुलेट करती है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो अलग अलग रेगुलेटर्स के अलग अलग डिसीजंस होते हैं, एमसीए अलग है। तो आई वुड से ये एक ऐसी चीज है जो अगर इंडस्ट्री बॉडी, जैसे आप भी सीआईआई के हैं या हम तो कहते ही रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई थिंक इसमें अगर इंडस्ट्री बॉडीज आगे जाएं और गवर्नमेंट को सीधा पीएमओ लेवल पे कहें कि आप एक ही इंडिया में पूरे एक ही केवाईसी का सिस्टम बना दीजिए जो डिफरेंट रेगुलेटर्स यूज करें, आई थिंक उससे मेरे को लगता है बहुत फायदा होगा। मेरा Yeah, पर्सनल we will ओपिनियन है take कि it up उससे from बड़ा CII. फायदा होगा। एक ही केवाईसी का, जैसे यूपीआई एक पेमेंट का एक सिस्टम बना दिया ना गवर्नमेंट ने, ऐसे जी जी केवाईसी का सिस्टम बना दें, आई थिंक जी जी। उससे बहुत फायदा होगा। बट आई वुड से कि अब गवर्नमेंट की हाल फिलहाल प्रायोरिटी तो आई थिंक हेल्थ और इकोनॉमी रिवाइवल है। आई डोंट नो हाउ मच इज ऑन प्रायोरिटी। Okay, thank you very much, Saurabh ji. Rima, your final comment, and then we close in a minute. No, thank you so much. Thank you, Saurabh. इतने टेक्निकल challenges के बाद भी we are able to connect and so nice of you. Thank you. Thank you, Rima. बाय। Thank you. Thank you. Okay.